talk about a little bit about electoral reforms. Fine. So first of all, इसमें issues क्या हैं electoral reforms? When we say कि we need electoral reforms, then at least we must know that what are the reasons why we need electoral reforms, or what are the issues involved in the election process. Fine. So the issues are, first of all, use of मनी पावर एंड फ्री बीज. बहुत ज़्यादा मनी पावर एंड फ्री बीज जो है इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है. एंड इस मनी पावर एंड फ्री बीज की वजह से क्या होता है, देयर इज़ illegitimate expenditure. Now there is a limit set with respect to the expenditure involved फ्रॉम अ कैंडिडेट कि एक कैंडिडेट कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है, बट देर इज़ नो लिमिट ऑन द पार्टी एक्सपेंडिचर एज अ होल. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है इलेजिटिमेट एक्सपेंडिचर भी होता है. ठीक है, लाइक विच इज़ नॉट इन द अकाउंट्स बुक ऑफ द पार्टीज, आइदर इन द अकाउंट बुक ऑफ द पार्टीज और द कैंडिडेट. फाइन. नाउ वोट बाइंग बहुत ज़्यादा चलती है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक चीज़ किस तरीके से पूरी इलेक्शन प्रोसेस में जो है मनी का रोल आ जाता है, फाइनेंशियल रोल आ जाता है, दैट इज़ कि जो हमारी जो 17th लोकसभा है, ठीक है, जो अभी 2019 में इलेक्ट होकर आई है, वहाँ पे 88% जो MPs हैं दे आर काइंड ऑफ करोड़पतिस. फाइन. सो now you can think like 88% is huge percentage, right? Then within this money power and freebies categories, obviously freebies जिसमें कि sometimes villagers को specially जो है कभी liquor दिया जाता है एंड कुछ और इन कैश या और काइंड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. मतलब these the candidates who are contesting elections, they somehow try to influence the decision making and the voting power of the people. Fine. Next, with respect to money power and freebies, within this category of money power, we have issue with respect to paid news. Fine. Now we know what is paid news. Any news which is actually sponsored. Fine. Which is actually something which is made news. Fine. Which is publicized either by taking money in cash or in some sort of kind. Fine. सो दैट इज़ एक ऐसी न्यूज़ जो कि बिकी हुई न्यूज़ है. ठीक है. एंड मतलब कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, पेड न्यूज़ ज़रूरी नहीं है फेक हो. ठीक है, बट द थिंग इज़ इट इज़ बीइंग पेड, राइट? सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाती है, राइट? एंड इट्स kind of circumvents election expenditure limits. Why it circumvents election expenditure limits? क्योंकि when you pay for the news to be publicized, obviously you need huge amount of money to pay for it, right? So वो जो election की expenditure limit है वो तो क्रॉस ही हो जाती है. प्लस मनी पावर के अंदर इशू ये है कि कोई भी लिमिट नहीं है पार्टी एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो मैं क्या आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ये भी सारे इश्यूज़ इस विद इन दिस मनी पावर एंड फ्रीबीज के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. एंड हाँ, पेड न्यूज़ के ऊपर आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो 2 to 3 years way back and it's still there. Fine. Now next thing is with respect to the elections in our country, that is the criminalization of politics. And जो मेजर इसका रीज़न होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन सम पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स. विल हैव अ वीडियो सेपरेटली ऑन criminalization of politics, so I'm not going into details of it. Fine. Criminalization of politics का simple meaning है that criminals coming into the politics. Fine. And caste based politics. Fine. Caste based politics as it is something which is actually gone into the subconsciousness of the people of India. However, in the recent time period, people are also taking into account the kind of development the government and the administration have come up with, and they are also giving votes on the basis of that. But this is one such thing, that caste and communal thing is one such thing which is deep down entrenched into the minds of the people of India. Fine. So ये एक इशू है जो इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, स्पेशली जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ होती हैं या जो विलेजेस में इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, जो वोट दिया जाता है. सो ये है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स.
But one thing that is to be kept in mind, that although caste and communal issues are very important and very critical with respect to the election procedure, but election campaigning along communal caste lines are banned under the election rules. If it is proved, then the candidature of that particular candidate can also be cancelled by the Election Commission of India. Okay, so this thing should be kept in mind. So these are certain issues with the entire election process that we have in our country. Okay, so obviously the question is that कुछ अभी तक किया गया है इसके बेसिस पे या नहीं किया गया है. ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो इन ब्रीफ सो दैट वी हैव सम मटेरियल टू रिवाइज एंड समथिंग टू राइट. ओके, सो व्हाट हैज़ बीन डन सो फार, लेजिस्लेटिव अगर हम एफर्ट्स देखें तो लिमिट लगाई गई है कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे. एक्चुअली कैंडिडेट के ही एक्सपेंडिचर पे लगाई गई है, मैंने ये बार बार आपको बताया, पार्टी के एक्सपेंडिचर पे नहीं है. देन दिस लेजिस्लेचर हैज़ ऑल्सो कम अप विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ये अपने आप में भी इशू है दैट ऑल्दो द इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव कम अप with respect to bringing transparency in the entire funding of elections, but there are concerns associated with this as well. Fine. And with respect to funding of elections, I have done a video on state funding of elections, so you can just go and revise it so that you may have a clear idea that what is state funding of elections and what right now we can go for. Fine. Next is इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है. जैसे कि कोई भी अगर छोटी मोटी भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है, तो उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस उसको वो चेक कर सकते. देन इलेक्शन कमीशन इज़ ऑल्सो कम अप विथ स्वीप. स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक voters education and electoral participation program. It is basically to enhance the voters awareness with respect to the entire election process and what they should be looking at while they cast their votes. Okay, then judiciary ne kya kiya hai, judiciary has come up with certain things, and for example I'm just going to talk about the recent ones, that judiciary has actually asked the political parties to disclose the assets liabilities during the nomination time only. फाइन, कि जो भी आपके कैंडिडेट्स आप खड़े कर रहे हो उनके आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताओ. देन दिस PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जुडिशरी आया था नोटा के साथ में, नन ऑफ द अबव. एक तरीके से हम चाहे तो किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं आउट ऑफ द ऑल ऑप्शंस. तो पीपल राइट नाउ डू हैव दिस ऑप्शन, देन दे कैन गो फॉर द नोटा ऑप्शन. फाइन. Apart from that, which I have not written, the judiciary recently have come up with that जितनी भी political parties हैं, they have to provide the criminal records of the candidates who are going to contest the elections. Fine. If there are any ongoing criminal records of the candidates. Fine. And those actually records, they have to be made public on the social media or on one of the national newspaper, one vernacular newspaper and so on. Fine. So this has also been asked by the judiciary from the different political parties. So far this all has been done. See, there can be so many initiatives that have already been done. You can just like find them in several articles, but as I told that we are doing it like कि हमारे पास में लास्ट टाइम रिवाइजमेंट के लिए कुछ हो, and at least we have certain sort of material to write it down. Fine. So that's it. नेक्स्ट, व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. अगर इसको हमें शॉर्ट में बताना पड़े तो सिंपल सी चीज़ है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. ऑब्वियसली हमें इसके लिए जाना पड़ेगा. अब वो पार्शियल स्टेट फंडिंग, ऑब्वियसली एट प्रेजेंट हम पार्शियल स्टेट फंडिंग के लिए ही जा सकते हैं एज सजेस्टेड बाय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, एंड द एंटायर डिटेल्स आई हैव गिवन इन दिस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट, in the Public Interest Foundation and Others versus Union of India 2018 case, Supreme Court has put the onus on the Parliament to frame a law to prevent criminalization of politics. ठीक है. Apart from that, what is to be done, कि हमें पता है कि पार्टी एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली नहीं है, राइट. अभी उस पर कोई कैप नहीं है. तो
पार्टी के एक्सपेंडिचर पे भी कैप लगाइए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के डोमेन में लेकर आइए, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज राइट नाउ आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन. देन ऑल पार्टी शुड बी गिवन इक्वल मीडिया स्पेस और एयर टाइम सो दैट मोर लेवल प्लेइंग फील्ड कैन बी क्रिएटेड. वोटर्स की अवेयरनेस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट प्रॉपर सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव. सो दैट इज़ तो वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एक्चुअली डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी लाने की ज़रूरत है. एक्चुअली इसको एक बहुत ज़्यादा पैराडॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है, कि पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं हम इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कंसर्न में, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद तो मतलब डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है एंड वहाँ पे हम इलेक्शंस कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट देम सेल्व्स दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. तो there is lack of intra-party democracy. What we see right now, and even especially after 70s, what we see is the centralization within the political parties. So what we require is intra-party democracy. एक पॉइंट और भी ऐड करा जा सकता है कि प्रॉपर फिनेंशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर की, ठीक है, एंड दैट स्क्रूटनी should also by some sort of institution and at the same time by social auditing also. So social auditing तो आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है. So these are certain reforms which needs to be taken care of, ठीक है. सो ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए एंड इसके अलावा ज़्यादा तीथ देने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सो दैट वो जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का उसको रोक पाए, हार्ड पनिशमेंट दे पाएँ, जो कोई एक्सपेंडिचर अपना मतलब ओवर द लिमिट करता है उसको चेक कर पाएँ, ठीक है. कोई अगर कास्ट या कम्युनल लाइंस पे कैंपेनिंग करता है उससे कैसे डील करना है, लाइक मोर पावर शुड बी गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो वी विल डू अ वीडियो ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन शॉर्ट लेटर ऑन, एंड दैट्स इट. थैंक यू.